شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بلخ کا شہر عروس العباد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز علاقہ سے سیاحوں کے قافلے چلے جاتے تھے۔ خراسان کی طرف سے ایک قافلہ اترا۔ اس میں ایک حسین اور خوبصورت نوجوان بھی تھا۔ شکستہ پیراہن، بکھرے بال، اداس آنکھیں اور پسر مردہ صورت معلوم ہوتا تھا کہ انتہائی مسکین ہے۔ شاہی باغ کے قریب اس نے اپنی کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے سہنے لگا۔ دن بھر شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی جھونپڑی میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ شاہی میں بھی اسے فقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ ایک دن فقیر کا دل بہت اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے شاہی باغ میں جا نکلا۔ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا آ رہا ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ تمہیں خبر نہیں کہ آج بلخ کے بادشاہ کی شہزادی یہاں تشریف لا رہی ہے؟ رخ پھیر کر دیکھا تو ایک جلوہ قیامت خیز نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک بجلی چمکی اور فقیر کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کی جھرمٹ میں آگے بڑھی۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا چین لٹ گیا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ عشق کا اضطراب بڑھتا گیا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ کسی باد صبا سے ہم کلامی کا بھی مکمل سکوت، تنہائی سے پیار زندگی کا عجیب حال ہو کے رہ گیا۔ حسب معمول سلطانی بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں نقیب نے آ کر اطلاع دی کہ ایک فقیر شہنشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا کہ اسے اندر بھیجا جائے۔ سلطان نے کہا، تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے کہا، ایسی فریاد لے کر آیا ہوں جسے مجمع میں عام پیش نہیں کر سکتا۔ تنہائی کا موقع عنایت فرمائے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور تمہیں کیا کہنا ہے؟ فقیر نے جرأت سے جواب دیا، جہاں پناہ کی شہزادی سے نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فرط غضب سے وزیر کی آنکھوں میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بات کرنے سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اسے کہہ دو کہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتہ بعد آئے۔ اس دوران میں بادشاہ نے وزیر سے کہا، صاف انکار کے بجائے فقیر کی حسن و تدبیر سے ٹالا جائے کہ کوئی ایسی شرط رکھ دی جائے جو پورا کرنا ناممکن ہو۔ 7ویں روز فقیر حاضر ہوا تو وزیر نے کہا، عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم ایک شرط پوری کر دو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا نام قبول کر لیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، فرمایا جائے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے۔ فقیر نے کہا، اگرچہ یہ شرط بہت مشکل ہے لیکن میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنا ہے وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ فقیر کچھ عرصہ پہاڑوں کی خاک چھانتا رہا۔ ایک دن پہاڑوں کے سلسلے میں خواب تھا کہ ایک بوڑھے شخص نے آ کر جگایا اور کہا، اس کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے۔ تیشا اٹھا اور کاٹ کر اپنے لکنے کا راستہ بنا لو، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کر اٹھا اور برف کے پہاڑ پر تیشا چلانا شروع کیا۔ بھرپور وار سے ان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا نظر آیا۔ حیرت کے ساتھ کھود کر نکالا، ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں کھیرا ہو کر رہ گئیں۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے ساتھ کئی دن کے شبانہ روز سفر کے بعد بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے دن شانی دربار میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے طلب صادق کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن آخری شرط ابھی رہ گئی ہے۔ اسے بھی پورا کر دو تو تمہاری درخواست یقیناً قبول کر لی جائے گی۔
अर्ज किया वो क्या है? वजीर ने कहा शहजादी के कान के आवेज़ों के लिए 2 बड़े सफ़ेद मोती मतलूब हैं। फ़कीर आज दूसरी मर्तबा घायल हुआ लेकिन मायूस ना था। सुबह हुई तो अल्लाह का नाम लेकर इश्क की आखिरी मुहिम पर रवाना हो गया। कई दिन चलने के बाद समंदर के किनारे पहुंचकर दम लिया। आंखों ने आसमान की तरफ देखा तो समंदर उबल पड़ा। नज़र झपकी तो मौजों का एक रेला जगमगाते हुए मोतियों का ढेर किनारे डालकर वापस जा रहा था। फ़कीर की पेशानी सईदा शुक्र के लिए ज़मीन पर थी। सईदा शुक्र के लफ्ज़ों से शाद काम होने के बाद मोतियों का ढेर दामन में रख लिया और झूमता हुआ बलख की तरफ चल पड़ा। बलख पहुंचकर सैयदा शाही महल में दाखिल हुआ। भरे दरबार में बादशाह के सामने सारे मोती बखेर दिए। हैरत से सारे दरबारियों पर सख्ते का आलम तारी था। वज़ीर ने कहा तुमने सारी शर्तें पूरी कर दी, लेकिन ज़रा गौर करो कि एक गुमनाम फ़कीर और एक मुअज़्ज़ज़ शहज़ादी के दरमियान जो हैसियत का फ़र्क है, इसे क्यों कर मिटाया जा सकता है? बेहतर है तुम अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाओ। वज़ीर का ये जवाब एक तेज़ निश्तर की तरह फ़कीर के सीने में पेवस्त हो गया। दिल का नगीना टूट गया। पहाड़ों और समंदरों के फातिहा कामयाबी की मंजिल के करीब पहुंचकर शिकस्त खा चुका था कि अचानक शाही महल में शोर बरपा हुआ। बदहवासी के आलम में एक कनीज़ ने आकर खबर दी कि अचानक शहज़ादी बेहोश हो चुकी है। नब्ज़ ठंडी हो रही है और आंखें पथरा गई हैं। सारे महल में कहराम मच गया। बादशाह के पहुंचते पहुंचते शहज़ादी की ज़िंदगी का चिराग निकल चुका था। इस हादसा पर हर तरफ सफ़े मातम बिछ गई। सारा दरबार सोग में डूब गया। जब तक शहज़ादी की तजहीज़ तकफीन का सामान होता रहा, फ़कीर सर झुकाए खामोश बैठा रहा। शाही महल से जनाजा उठा तो हमरा चलने वालों में फ़कीर भी शामिल हो गया। नमाज जनाजा के बाद शहज़ादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सारा शहर सोगवार उदासियों में डूबा हुआ था। तन्हा फ़कीर अपनी कुटिया में जाग रहा था। सन्नाटे के खामोशी और रात की तन्हाई में अचानक फ़कीर उठा और अपना तेशा लिया और शाही महल के कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्र की मिट्टी हटाई और जल्द ही तख्ते तक पहुंच गया। चंद तख्ते खोलने के बाद यूं ही कफन का आंचल नज़र आया। इसके ज़ब्त का पैमाना छिलक उठा। बेइख्तियार कब्र में उतरा, लाश को बाहर निकाला, कंधे पर रखा, वीरान झाड़ियों से तेज़ तेज़ गुजरता हुआ अपनी कुटिया में पहुंचकर दम लिया। कंधे से लाश उतार कर निहायत एहतराम से एक कोने में लिटा दिया। आंसुओं में डूबी हुई दुआ अर्श से टकराई तो दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। आने वाला हकीम था और साथ ही दवाओं का बोझ उठाए हुए एक मुलाजिम भी था। कुटिया के अंदर दाखिल होते ही तबीब ने शहज़ादी का कफन उठाया, नब्ज़ पर हाथ रखा और फ़कीर को आवाज़ दी। शहज़ादी की मौत वाकई नहीं हुई, ये सख्ते की हालत में है। दवा की एक शीशी निकाल कर फ़कीर को देते हुए कहा, नहायत तेज़ी से शहज़ादी के तलवों की मालिश करो। ऐसे करते हुए इसकी निगाहें शहज़ादी के चेहरे पर जम गईं। चंद लम्हे बाद शहज़ादी के जिस्म में हरकत पैदा हुई। फ़कीर ये करिश्मा देखकर खुशी से झूम उठा। अचानक एक अजनबी माहौल में अपने आप को देखकर शहज़ादी हैरान रह गई। कफन के आंचल से मुंह ढांपते हुए कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया है? फ़कीर ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए जवाब दिया, किसी बात का अंदेशा न करें, आप इस वक्त एक महफूज पनाह गाह में हैं। इसके बाद सारे वाक़या तफसील से बयान कर दिया। सारा माजरा सुन लेने के बाद शहज़ादी को इश्क सादक की हिमायत में कुदरत की कार फरमाई का यकीन आ गया। तबीब ने फ़कीर को सामने बिठाया और अपने मुलाजिम को शाहिद बनाकर एजाब कबूल की रस्म अदा कर दी और फरिश्ता गैब की तरह दुआ मांगता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। फ़कीर की ज़िंदगी का आज नया दौर शुरू हुआ था। शरीके गम की तरह शहज़ादी ने रिफ़ाकत का हक़ अदा कर दिया। नहायत खुंदा पेशानी से शाही ज़िंदगी गुर्बत और इफ़लास के सांचे में डल गई। फ़कीर की कुटिया से शाही महल का फासला ज़्यादा ना था। इसे यकीन था कि वो सिर्फ फ़कीर के लिए ज़िंदा की गई है। ख़ानदान की लाडली बेटी के इंतकाल के बाद शाही महल पर हमेशा के लिए गम छा गया। दरबार की रौनकें सर्द पड़ गईं। माँ बाप बेटी की मौत के गम में उदास रहते।
दीनी मशागल से दिलचस्पियाँ बढ़ने लगीं। मस्जिद मकतब की तामीर और मजलिस वाइज़ का इनेकाद इनका मशगला बन गया। हफ्ता में एक दिन तालीमी इदारों का मुआयना करने के लिए मखसूस था। आज एक मकतब की सालाना तकरीब थी। तमाम बच्चा साफ़ सुथरे लिबास में बादशाह के खैर मुक़दम के लिए खड़े थे। यूँ ही बादशाह की सवारी आई, तमाम बच्चों ने झुककर सलाम किया। नागहां बादशाह की नज़र एक 4 साला एक बच्चे पर पड़ी और दिल इसकी तरफ खींचने लगा। बार बार इसे देखने की ख्वाहिश मचलने लगी। अपने पास बुलाकर बिठाया और मुअल्लिम से दरियाफ्त किया, इतना दिलकश चेहरा रियासत में पहली बार नज़र से गुजरा है। ये किसी अर्जमंद बाप का चमन का फूल है। मुअल्लिम ने जवाब दिया, मदरसा में दाखिल हुए अभी चंद ही दिन हुए हैं। कभी कभी इसका बाप भी हमरा आता है। ज़ाहिरी वज़ह क़ता से मस्कीन आदमी मालूम होता है। बादशाह ने हुक्म दिया, इस बच्चे को अपने बाप के हमरा दरबार में हाजिर किया जाए। फ़कीर ने शहज़ादी से इसका जिक्र किया तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसे महसूस होने लगा शायद मशीयत इलाही से इस राज को बेनकाब करना चाहती है। हाकिम का हुक्म था। दूसरे दिन फ़कीर बेस बदल कर दरबार में हाजिर हुआ। सैकड़ों निगाहें इस बच्चे की तरफ मरकूज़ हो गईं। तख्ते शाही से उठकर बादशाह ने बच्चे को गोद में बिठा लिया। नामालूम तौर पर दिल की कशिश तेज़ हो गई और रगों का खून जोश मारने लगा। मलका दौड़ी हुई खिदमत में हाजिर हुई। मनूस शक्ल सूरत का बच्चा देखकर मलका हैरत में पड़ गई। बेसाख्ता बोल उठी, ज़रा गौर से देखिए, इसकी पेशानी और होंठ हूबहू मरहूम शहज़ादी की तरह हैं। जैसे भी मुमकिन हो ये बच्चा मुझे दिला दीजिए। बादशाह ने जवाब दिया, मैंने मालूम किया है ये एक फ़कीर का बच्चा है, लेकिन किसी का गोद का खिलौना जबरन छीन लेना इंसानी मुरवत के खिलाफ है। मलका ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, लेकिन ऐसा करने में क्या हर्ज है कि इसके वालिदैन को भी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया जाए। बादशाह ने फ़कीर से कहा, मलका तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, क्या तुम इसकी इजाज़त दोगे? फ़कीर ने जवाब दिया, जहाँ पनाह मलका की खुशनुदी की खातिर में गवारा कर भी लूँ तो इसकी माँ इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बादशाह ने कहा, अगर शाही महल के एक गोशे में तुम लोगों की रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया जाए तो क्या हर्ज है। बच्चा भी माँ से अलहदा ना होगा और मलका भी अपना दिल बहलाती रहेगी। फ़कीर ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता मेरी अहलिया इसे पसंद करेगी या नहीं। बादशाह ने कहा, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, तुम्हारी अहलिया को भी राज़ी कर लेंगे। दूसरे दिन मलका की सवारी फ़कीर की कुटिया से बाहर थी। ख्वाजा सिरा ने फ़कीर को इतला दी, मलका तशरीफ़ लाई हैं, वो तुम्हारी अहलिया से मिलना चाहती हैं। ये सुनकर फ़कीर का दिल धड़कने लगा। शहज़ादी को इतला दी, सालिहा साल का मुख्फी राज आज बेनकाब होना चाहता है। अब छुपने की कोई गुंजाइश बाकी ना रह गई थी। मलका जब कुटिया में दाखिल हुई तो शहज़ादी दम बखुद खड़ी थी। पहली नज़र पड़ते हुए आंख चिपक गई। दोबारा खुली तो सख्त का आलम तारी हुआ। थोड़ी देर बाद मुंह से एक चीख निकली। शहज़ादी की फ़ौरन ही दूसरी चीख बुलंद हुई, दफनाई हुई बेटी को क्यों कर जिंदा हो सकती है। एक नामुमकिन बात कभी वाक़या नहीं हो सकती, यह सिर्फ नज़र का धोखा है। मलका ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया, क्या वाकई शहज़ादी हो, मेरी लख्ते जिगर हो? सच सच बताओ तुम कौन हो? शहज़ादी ने भराई हुई आवाज़ में कहा, यकीन कीजिए मैं सचमुच आपकी शहज़ादी हूँ। मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूँ जिसे मुर्दा समझकर दफनाया गया था। करिश्मा कुदरत से दोबारा जी उठी हूँ। सिर्फ एक सच्चे अल्लाह वाले फ़कीर के लिए ज़िंदा की गई हूँ। इसके बाद शहज़ादी ने तफसील से सारी सरे गुज़श्त बयान कर दी। अब बात कुटिया से बाहर निकल चुकी थी। बिजली की तरह सारे शहर में खबर फैल गई कि 4 साल की मरी हुई शहज़ादी अचानक जी उठी है। बादशाह ने सुना तो खुशी से पागल हो गया। ये सुनकर सारा शहर फ़कीर की कुटिया की तरफ चल पड़ा। शाहाना तज़्को एहतशाम से फ़कीर और शहज़ादी का जुलूस निकाला गया। नहायत एजाज़ के साथ फ़कीर को शाही महल में उतारा गया। अब वो फ़कीर नहीं था बल्कि सल्तनत की आंखों का तारा था। बादशाह का वली अहद और बलख का बादशाह था।
تاریخ ولایت میں اس فقیر کا نام حضرت ابراہیم دہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔